K nearest neighbor, how does the KNN algorithm work? Okay, lazy and non-parametric learning algorithm, naive based, then we study about, and finally we will do a few projects which are the capstone project and the real time, and we will take from the Kaggle and the somewhere else, and we try to solve this. So this would be the whole curriculum of the course. There is no deep learning involved. Okay. Okay. Yes, sir. So is there any doubt, any query? Do you have Mohsin? No, sir. Okay. So Mohsin, have you attended my previous any session and workshop? Zubair has attended. I know that. Yes. But Mohsin No, has sir. a, I haven't. I you have have not. not, sir. Okay. So we start today with the basic things. I will first I would like to know about your background, the educational qualification, little bit about. Sir, I am an engineer, electronics engineer. Okay, okay. So you have completed engineering, No, sir. Currently in the third year. third year. Okay. And Jubair, you are also doing the same. No, 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 sir. I'm in BSCIT third final year. You are in. BSCIT final year. Acha, acha, acha. Final year. You are. Correct. So I think the little bit knowledge of programming language. Do you have, Jubair? Yes, I will. sir. Huh. What languages have you learned? You? Uh, Java basic, .NET, Hmm. Python. Python also learned This to you. Okay. And Mohsin? Hmm? No, sir. No, my basic is not so good. Okay, you have not learned any No, programming not. language. No, sir. Okay, no problem. So we start today's session. I first explain you something about the Python and different languages. Uh, my screen, are you getting there? Yes, sir. Okay. First, I would like to explain you the thing, because everything is wherever the data we have, there is statistics. What is data? More than one is called the data. The thing which is one is not a data. Okay. Hmm. So more than one, whatever we have, that is called a data. Okay. So statistics, if you see the definition of the general definition of the statistics, so it's statistics is a science and art of collecting, classifying, computing, analyzing, interpreting, and presentation of data and its insights. So as you know that it is a science and art both. I will explain why it is science and why it is art of collecting. Okay. First, we collect the data from various sources, and then we classify the data. Okay, which is the nominal, ordinal, and discrete, continuous, and the different sorts of data we have and the data types. So we classify it, and after classification, we compute the statistics. Statistics is what the mean, mode, median, standard deviation, correlation, everything is called the statistics. So we compute it, with the help of some formula. And after getting the result, because there is a numbers, so we get the results in number, and then we analyze it. Okay, then we analyze it, and after analyzing, we interpret in words the result, and
Finally, we present the result in the form of table, in the form of text, in the form of figure, and everything, the whatever the insights you want. So, along with the results, along with this interpretation. So, you could do those all things. So, this is basically a statistics. Here, the two things, science and art. Why it is science? If I give you one data like this, so can you find out the mean of this? Yeah. Calculate it. Calculate it. Yeah. What would be the mean of this? You know the formula of mean, na? It is the average, formula of average. How you get the average? Yeah. 2 plus 5 8 plus 10. You calculate it easily. Calculate yourself. I want to hear from you. 32 is a 2. Easily you keep your pen, copy you use, or your calculator, your mobile phone you could use for calculation of this. How much? You could use the chat box if you are getting some problem. Is there no chat box? No, we have a chat sir. box there. So you could in the chat box you could write what would be the value of this. $6.4 Jubair. And what is your Mohsin? You are also 6.4. And my also 6.4. So we see that our all means are same. Now, Mohsin also calculate the 6.4. Jubair, you also calculated 6.4. And I also calculated 6.4. For all of us are getting the same value because there is some fixed formula what we are using or the procedure what we are using. We are getting the summation of all numbers and we are dividing by the total number of. Okay. So the same procedure we will follow, same result we will get. So it is a science. There is no requirement of any experience. But just if you know the formula, you could calculate it. If you don't make any calculation mistake. Okay. So we all get the same result. So it is a science because if anyone will do it, they will get the same result. Okay, it doesn't mean that I am more experienced, my mean would be better than your mean. It doesn't date me. So it is a science. Second thing, it is a art also, as well as science, it is an art also. So why it is art, I will explain you. I will ask you something. Look at this glass of water. How do you interpret it? Mohsin, कैसे करेंगे अपन इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ये आधा गिलास भरा हुआ है पानी का. हाँ सर. ये गिलास है पानी का, इसको आप कैसे शब्दों में बोलेंगे कि भरा है या खा? हाँ. The glass is filled with water. Half glass. Half filled. Half filled. Right. है ना? And
Jubair, you? Jubair, how do you interpret this? Mohsin is telling it is half Full, filled, but half full or half empty. half full, half empty. Okay, we have two interpretations. Yes, sir. One is half full, another is half empty. Okay, so generally people say in this way, and statistics is, if you see the definition of statistics, so statistics shows us so many things. Okay, when it gives us the result. Okay, or statistics is like a mini skirt. It shows us so many things, but hide the main thing. So here also, this statistics showing us so many things. It is the half full and half empty. You are telling this. It is showing this thing to us. So many things we are getting through this class. But the important thing, the main thing is always hidden behind the result, behind the values of the results. Okay. So what is that thing? What is the thing behind these results, which we are not able to see? So when you are able to search it out, behind the value, what is thing behind the value, then you would be a good data analyst. Okay. So your both interpretation is not up to the mark. The correct interpretation is this glass is full. Half with water and half with air. Understand? Okay, sir. This is the correct interpretation. So something is hidden in the result. You could not search it out. Understand? There is air. You Yes, could sir. not got it. Okay. So wherever the task of interpretation comes, it requires some experience. Okay. You could write the script, you could find out the result, but how to interpret it, that is an art. Understand? That is the game of words. Okay. Here in the statistics, we have to play with data. We have to play with numbers. And whenever we get the results, also we get in the numbers. Which is the result, or which is the result of our game. And then we get the result, and then the main task starts of the interpretation. How do you interpret it? So it requires some experience. So it comes with the experience. You do more and more, and you will get the experience. Okay. It will not come in one shot. It will require. It will take some time. Okay. It depends on your how much time you are giving to this task, and how long you have given the time to this task. As per that, we will get this quality. So understand why it is science and why it is an art. Is there any doubt, any confusion No, to you? sir. Okay. No, sir. Now we come to the point again. So this was all about the statistics. Now the statistics, definitions you have in, I think in your mind it is clear now. What is statistics? Okay. Now we see what is data analytics. Data analytics is a process
of inspecting, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information. First, I explain this thing, then I will proceed further. Data analysis is a process, while statistics was a science and art. We have read there, and it is a process of inspecting the data. Whenever you get the data, how do you inspect the data? That is called a data mining, data cleaning, and transforming is mean the data wrangling. Okay, we will go in deep later. There are so many things in the data. There is a data mining, there is a data preparation, there is a data wrangling task, there is a feature engineering. These all things comes here when we play with the data. Okay. So in the playing with the data, you will inspect the data, you will clean the data, you will transform the data as per the requirement of our model algorithm. And finally, modeling the data, we train the model with the goal of discovering useful information, informing conclusions, and supporting in decision making. Okay. So what does it mean? You have seen the policybazaar.com site. Heard about it or not? Policybazaar.com. Have you heard about it, Jubair? Yes, sir. Policy Bazaar. Or you have seen that in the mobile, the credit card salesperson, they have some application in the mobile. And they came to where they ask about your income, your name, everything. And they feed there, and then we decide you will get the credit card of how much limit, Yes, yes. whether you are eligible or not. Yes, sir. So there is a machine learning modeling are there in their portal, whatever the application they are using. There is that algorithm is fixed behind that. Sir. So according to that algorithm, uh, they comes to the some conclusion. Hai. The informing conclusion. What I am talking about, the informing conclusion and supporting in decision making. Okay, understand? Just a minute, I have call. Just
Mohsin, where is Jubair? He's coming. He's logging in from laptop. Sir. Okay, okay, got it. He said he's joining. So should I message him? Mhm. No, he has He come. came, he came. Now, are you there, Jubair, now? Join. Yes, sir. Okay. So, now you understand what is data analysis? Okay. As I explained you the policy.bazaar, the algorithm and machine learning algorithm is behind that. Okay. So it works in that way. Most of the applications, machine learning applications are being used in the so many mobile app. Okay. There is another thing that is called a data science. It is an umbrella term. It encompasses everything. Data analytics, data mining, machine learning, and several other related disciplines all comes under this umbrella, data science. Understand? No? All things come under this. So I would like to ask you about you have seen that there is one question. What is first statistics? So if I explain you what is statistics, the mean, mode, median, standard deviation, these are all things, whatever we calculate in the statistic is called the statistics. Calculate for the sample. So this is called the statistics. And what is the first statistics? Can someone tell me? First statistics, what will you do when you get the data? What you calculate first? Mm, Yeah. we calculate the total Mhm. summation of the given data first. Mhm. We calculate. Mhm. Suppose you have a variable. No, you have a variable like gender. Okay. There are three categories in the is that variable. One is the male, female, and transgender. Okay. So what will you do there? Male, female, and transgender. Three categories. Yeah. You have a column gender, Yes, sure. and this column you have three categories: male, female, and transgender. This way you are getting on whole data, then male, no, then female, then TG, then male. In this way you have got the data. Okay. So what you would do with this sort of data? You have the categories. How do you arrange this? Hmm. Male, female, and transgender. How do you express this thing, this column? Suppose there are 50 observations. We have. Then what will you do with this sort of data? So we'll sort the amount of males and females and the TG. Correct. Correct. We'll make a table. Okay. Yes, Table sir. for this male, female, and TG. Yes. Okay. So suppose there are 24 male and 18 female, and remaining we see whatever it is the 12, 42, 8 are. Okay. So these are 15 out total. So fun thing, what is this?
frequency, the number of Yes, sir. these are called the frequency, or this is our gender column. Okay, Right. got it? So we get the frequency, but it is not a calculation. It is the arrangement. What it is called? Arrangement. Arrangement. है ना? We have just telemarking, or these all things are called the arrangement. We have arranged this thing. Understand? There is no calculation. This is the arrangement. You have arranged in this way. Okay. But we have to, whenever you present your report, if you show this table in your report, it is not a right way. It is not a right way to show the frequency table. We will show the table, but not the frequency table. What other measure you could take instead of frequency? Can you tell me? Instead of frequency, you could convert this frequency to something other. Yeah. Use your mind. What we use instead of frequency. Mm. So, What do you get when you get the result? no, sir. When you get the result mark sheet, Yes, sir. what is there in the result? Percentage. Correct. Percentage. Correct. Yes, sir. So we could take the percentage of this. What Yes. happens? Suppose there is some number 50. If I talk about there were 24 males in the conference. So it is incomplete information. Is it or not? Yes, sir. Yes, sir. 24 from how much? From how many? Sorry. है ना? Yes. Hmm. But if I say that we have 48% of male over there, then it is correct, complete information. The 48%, it means always out of 100. Yes. So it is a complete information. Yes, sir. Is it clear now? Yes. If we say 36% female, it is a complete information. If we say 16% is transgender, it is a complete information. Got it? Yes. So the percentage is a first statistics we could say is relevant to percentage, but it is not basically a percentage. Percentage is what? First we find out the proportion. Proportion is basically a ratio. Here, the favorable outcome over total outcome. You know the formula of probability. Favorable outcome over total outcome. Is it clear? I think you are already know this formula for the probability. Yes, sir. So this probability is nothing. It is a proportion. Okay. And we multiply this proportion with 100%, then it converted in percentage. Understand? Suppose you have 24, you have to convert this in percentage. So there is a mathematics rule. If you multiply something, then you have to divide by also that thing. Is it the rule of mathematics? Yes. Otherwise it would be imbalanced. So you could write in this way, 25 into 100 into 1 by 100. And 1 by 100 is percent. Okay. It is called Percentage. percent. So 25, sorry, whatever we have 24. Na? Okay. So what we are doing? 24 over 50 into 100 over 100. This is the thing. I have not written here 100, 50.
Yes. The same thing. So we could say that 50 two times, okay, 24 into 2 40, 40. and this is percent. Yes. Got it? So the first statistics is what? Probability. You got the percentage through the probability, na? Probability is nothing, it is a proportion. Yes. In the statistics language, it is called the probability. Understand? Got it? Yes, sir. Yes, sir. So first statistics is nothing, it is probability. Understand? Yes, sir. So statistics starts with probability and also ends with probability. That is the thing in the statistics. Whatever the thing comes under this between the statistics, if I tell you, statistics starts with probability, and there are so many things we will study in the statistics, and it ends with probability again. How does it happen? I will explain you. Starting, you know, है? You understand the starting of statistics. The first statistics, now you know that it is probability. And now we see the last statistics, which is also probability. So I explain you that. When we produce some image classification model, do you know what is image classification model? Do you have some know-how about this? No, sir. Suppose I am making a deep learning model of image classification. I'm giving a very simple example. I am making a image classification model of fruits. Is it clear about the fruits? Yes. So I have different images of apples, of a different color of apples, different images of oranges, different size of oranges, different color of oranges. So many pictures, 100, 200 pictures of same object, of 100, 150, 200 pictures of apples, 1000 pictures of apples, thousands pictures of oranges of different types, different size, different colors. Okay, from different angles. Banana, cherry. In this way, I have suppose 10 categories, 10 classes. These are called the class. No, I have 10 classes, 10 different fruits. Is it clear? And I trained a model. After getting my model, I randomly choose one of the fruit whose picture I have not already used in my training. No? But the class is same. The orange, I suppose I am choosing an orange, but not data orange, whose picture I have shown to my model. Okay, while training. It is a different orange. I take the picture of that orange, or that orange I will show in the webcam to my model, and then it write the answer. It is orange. It recognize it. It is an image classification. We have the different images. It has been classified in apples, orange, banana. Now it could recognize the things. The two things in the artificial intelligence. Total are three. Third is the robotics. We will not go in the deep in the robotics. We have main two things. And Alexa, you know that? Siri and Alexa? Yes, sir. That is nothing. That is a chatbot.
That is a chatbot with integrating with voice. Okay. Chatbot. Chatbox is a different thing. Chatbot is a different thing. Chatbot, and one is the image classification model. These two model, if you have listen about the Sophia. Sophia, No, sir. it is a robot. The Israel has given him the citizenship. Sophia or Sophia, whatever. You didn't know about it. No. I just Sophia, Sophia, the Yes. robot. SOPHIA. SOPHIA. Sorry, Yes. SOPHIA. I have given the wrong spelling. SOPHIA. Sophia. Heard about it or not? Eh? No. Have you seen in the internet or not? Nothing. So they have integrated these two modules in Sophia: image classification and chatbot. Chatbot is what? Whenever you ask something, in this chatbot you see in the so many mobile application of banking sector, SBI and the ICICI Bank, you will see there is some chatbot in the mobile application. You could Yes. write something and it respond you. Zomato में है ना? Zomato there is also. So these are all the chatbot, but they are not totally. है ना? They are the contextual chatbot basically. Contextual. They are not AI. They are half AI. Okay. भी They are not full AI. So half AI chatbot is called the contextual chatbot. Huh? Okay. So what does it mean? I explain you. What happens? There are two modules in chatbot. One is NLU. NLP, sorry. NLU, not NLP. NLU. It is called the user interface. What is it called? I take a blank paper so you could understand easily. Just a moment. I remove this. I clear this chart, and I take one blank so you could understand better way. Okay. Just explain you this, and just resize it. This 6,000. Now it's okay. Choose 50%. So I'll show you the chatbot. In chatbot, what is there are two models, two engines, suppose we could say. One is the two models are there. One is the NLU, natural language user interface, and it is also called the user interface. Second model is our core model, which is called the dialogue management model. Dialogue management model. It is NLU model, or this is user interface model. Okay, or these are dialogue management model. If you have to ask something in a chatbot, so Jubair, you have a different syntax of the sentence. You have a different pattern of asking the same thing. Mohsin have a different. We are asking the same thing, Yes. but we have different text over here. Yes, sir. Understand?
And I also have a different way to ask the same thing. We are asking the same thing, but we have a different approach of asking. So what does this model do? There is some, it catch only the intention what we are asking. What does it catch? Intention. 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 So here we say in the technical form, it is called the intent. What does it call? Intent. Intent. And one thing is, or there is a entity, and I will not talk detail about the entity here, but we are talking about the intent here. So it will just check the intent. Suppose we have a request. We are all asking, making a request, but we have a different text structure. You know, we are requesting something. So there are so many intents. Suppose I am just hypothetically putting few instant. One is the request. One is the complaint. Okay. One is information. Requiring some information. These are the some intents we are taking hypothetically. And what our model will do, this user interface model, after reading your statement, it will sort out which intention do you have. So it will give the different intention a different probability. Suppose the request has 0.62 probability, complaint has 0.32 probability, and information is 0.19 probability, suppose. So what it will do, it will select, which one it will select? The highest probability class, intent. So it will select the request which has the highest probability, and it will transfer this intent to core model. Understand? It will say to the core model, there is a request, and entity will explain you what sort of request. Also along with the entity. And I'm not going in deep. Entity also with the probability it will explain. So then this core model, dialect management model, will respond as per this intent. Understand? Yes. So that you see whatever the Zomato and the bank application, you see the chatbot that works up to here only. This is the deep learning process we use here, or we are getting. Okay. RNN, LTSM algorithm we use, long short-term memory and recurring neural networking model we use here in the deep learning. And it just give the class to core model. In the core model, it does not make the dialog. There is already a script written for the each intent. Understand? Yes, sir. If you have the request intent, they have a specific script for that intent. Okay, if you are asking about your balance, how much balance in your account, so you will mention your account number, everything is there, they have. Yes, sir. So wherever the fill in the blank, they will get the data through the database and fill that amount in that statement. Understand this thing? And it will show to you. Right. Understand? So it is not giving the whole response by itself. Understood? There are some statement already, there is some text we have written. In that form, it is giving us the response. Okay, it is not making a sentence through the words. Here what we are doing, you have given one statement, it divided the statement in words. Okay. Then he tried to find out through the NLU algorithm, natural language processing technique, if it find out what is the intention. Okay, according to the weightage. But here
it is not adding the words for responding you. We have already a complete sentence which which is being delivered to you. Understand or not? Yes, sir. So it is a contextual chatbot. Contextual chatbot. There is no AI chatbot at present in whole world. No AI chatbot developed so far. Understand? We say there is AI, but it is 50% AI only. It will take near about 5 years more to be an artificial intelligence chatbot. Even Sophia is also a contextual chatbot. The algorithm of the contextual chatbot they have. Alexa also. Siri also. Nothing is AI. Whatever it respond you, they have a sentences there. They just fill in the blanks from the database and give you the response. Okay. Is that make sense to you? Yeah. आया समझ में आया मोहसिन? क्या बात? थोड़ा मतलब क्या है कि अभी तक कोई भी एआई चैटबॉट नहीं है कंप्लीट, कहीं भी नहीं है। लोग यदि क्लेम करते हैं तो रॉन्ग है। सोफिया भी जो है वो भी कंप्लीट चैटबॉट नहीं है, क्योंकि इंदौर में आई थी सोफिया क्या, और हमें उससे क्वेश्चन ही पूछने दिया गया था। हाँ आई वाज देयर, आई आस्क्ड हिम टू प्लीज आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन टू द सोफिया। नो you write the question, then tomorrow we will consider। मतलब मैं पहले एंट्री लेना पड़ती है ना, वहाँ पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। उन्होंने बोला था आप क्वेश्चन लिख के दो, मतलब 15-20 दिन पहले जब इसकी वो रजिस्ट्रेशन। इंदौर में आया है सर? हाँ इंदौर में आया, और उनके क्वेश्चन लिखे हुए थे पहले से, उसको उन्होंने एल्गोरिथम में पहले डाल दिया था। अच्छा क्या यदि वो क्वेश्चन पूछने देते तो हाँ। मैं 5 मिनट लगते, मैं सोफिया की पूरी उधड़ के रख देता कि ये क्या है। क्या तो ऑलरेडी सेट रहता है सर उनके इसमें? पूरा सेट, क्योंकि ये अभी बना ही नहीं है ना, ये वाला सिस्टम नहीं बना है इधर का। डायलॉग मैनेजमेंट का एनएलपी तो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो है हमारे पास, एक टेक्निक आपने सुना भी होगा। यस सर। पर ये यूजर साइड है हमारे पास, ये सेंटेंस को तोड़ने वाली है, डिकम्पोज करते हैं सेंटेंस को। इज इट क्लियर? यस सर। पर सेंटेंस को वर्ड से सेंटेंस बनाने वाली टेक्निक एक गुजरात के लड़के ने बनाई है सैमसंग कंपनी के लिए, उसका नाम है प्रतीक। क्या, और सैमसंग ने उसको हायर कर लिया है। अब वो एल्गोरिथम किसी को दे नहीं रहा है। अच्छा। इसकी उल्टी प्रोसेस चाहिए ना यहाँ मुझे डायलॉग मैनेजमेंट में, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ है ना। वो प्रोसेस अभी तक किसी के पास नहीं है। ये क्लेम किया जा रहा है कि प्रतीक ने उसको बना लिया है, और ये क्लेम किया गया था आज से 1 साल पहले। पर आज तक कुछ भी सैमसंग ने ऐसी कोई डिवाइस नहीं निकाली जिससे हम उस पर विश्वास कर सकें कि ये बन चुकी है। फेक भी हो सकता है। तो अभी इसको बनने में 5 साल लगेंगे। अच्छा। क्योंकि उसके लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये चीज? नहीं है, इवन नासा के पास भी नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी ये चीज होती ना तो वो पूरा रोबोटिक्स में ये लोग बहुत आगे हो गए, है ना।
रोबोटिक्स इनका बहुत अच्छा हो गया। इमेज क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार देख लेगा मॉडल, अगली बार पहचान जाएगा। आप मेरे घर की घंटी बजाओगे, आप जैसे एक बार मेरे घर आ गए और उसका नेक्स्ट टाइम आओगे तो मुझे अंदर बता देगा कि यार ये जुबेर आया है। मैं बोलूंगा हाँ गेट खोल दो तो खोल देगा वो, क्या बोलेगा आप बैठिए जुबेर जी आते हैं थोड़ी देर में परमार। ये तो इमेज क्लासिफिकेशन तो है, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां एक ही मॉडल फिट होता है। ये दो चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास क्या चीज नहीं है? जो मेन ब्रेन है, जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपके क्वेश्चन को सुन के रिएक्ट करेगा, वो तो टेक्स्ट ही है ना। एक सेंसरिंग हो सकती है, सेंसरिंग हो सकती है, मान लो किसी की जबान नहीं है तो वो सेंसरिंग से काम चलता है ना उसका। सो पर बिना टेक्स्ट के सुने वो रिस्पॉन्ड क्या करेगा? इसलिए अभी ये रोबोटिक्स कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ये सब डिफेंस में और मिलिट्री में आ गए होते रोबोट्स कब के, समझ गए? तो ये गैप है, बस ये गैप फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि प्रोसेसर जो बन रहे हैं अभी, जो आपने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सुना, हाँ सुना होगा ना? हाँ सर। उनका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, और जब ये सभी जगह ये डिवाइसेस आ जाएंगे आपकी मोबाइल में और सब जगह ये एल्गोरिथम और ये सब बैठ जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स वाली। अभी तो क्या 0-1 पे चलता है कंप्यूटर, बाइनरी पे। बाइनरी पे। फिर क्या चलेगा? खाली इलेक्ट्रॉन पे चलेगा। वो इलेक्ट्रॉन जहां इसको 0 बनना होगा 0 में कन्वर्ट कर देगा, जहां 1 बनना होगा 1 बना देगा। 0 और 1 दो लेके नहीं चलेगा वो। अब अंतर समझ में आ रहा है, डिफरेंस? यहाँ दो ब्लॉक लेके चलना पड़ रहा है ना, एक 0 भी और 1 भी स्विच में। ये स्विच है 0 एंड 1 ऑन ऑफ, फिर वो सिंगल से ही कन्वर्ट होगा 0, सिंगल से ही कन्वर्ट होगा 1। इज इट क्लियर? वो है क्वांटम के अंदर की कोडिंग। क्वांटम उस पर काम करता है। अभी क्वांटम को आने में टाइम लगे, जब क्वांटम आ जाएगा तो फिर ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि चीजों को जोड़ना इसे बिग टास्क। सेंटेंस बनाना ग्रामेटिकली करेक्ट हो, रिस्पॉन्स हो, है ना? तोड़ना तो आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ गया इतना आपको? तो अब यहां अपन किस चीज से फाइनलाइज कर रहे हैं? इसने क्या निकाल के दिया एनएलयू ने? काहे पे डिपेंड करा ये? प्रोबेबिलिटी। तो एंड कहां हो रहा है आपका? प्रोबेबिलिटी, है ना? एंड कहां हो रहा है? प्रोबेबिलिटी पे हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग भी प्रोबेबिलिटी से हुई और एंड भी प्रोबेबिलिटी में हुआ। क्लियर? और यही चीज इमेज क्लासिफिकेशन में भी होता है। इमेज क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने उसको ऑरेंज की इमेज दी, तो वो क्या करेगा? हर इमेज की एक प्रोबेबिलिटी देखेगा कि एप्पल होने का इतना प्रोबेबिलिटी है, ऑरेंज होने का इतना प्रोबेबिलिटी है, मैंगो का इतना है। जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लास आपको शो कर देगा कि ऑरेंज है या एप्पल है या मैंगो है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो एवरीथिंग किस पे काम कर रही है? प्रोबेबिलिटी पे। इज इट क्लियर? Everything is working on probability. Probability is the first statistics as well as last statistics. अब समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी पहली स्टैटिस्टिक्स भी वही और एंड भी वही होता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स का बीज हुआ, जो सीड है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? दैट इज द सीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? यस सर। तो ये अपन ने देखा व्हाट इज फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स। Yes. आज तो खाली मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें, पहले आपके कंसेप्ट क्लियर हो, फिर अपन आगे आएंगे। अब एनालिसिस क्या होता है? क्योंकि हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम कोई भी बात कर रहे हैं तो एनालिसिस की बात हो रही है। व्हाट इज एनालिसिस? तो पहला जो लाइन है वो एनालिसिस का डेफिनेशन है।
Analysis refers to breaking a whole into its separate component for individual examination. एक किसी कंप्लीट चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देना और उसका इंडिपेंडेंटली उनको एग्जामाइन करना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. इज इट क्लियर? Yes. सो इसमें एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, फिर इन्फेरेंशियल एनालिसिस होता है, फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है, फिर पर्सपेक्टिव एनालिसिस होता है. नीचे तो मैंने डेटा एनालिसिस की डेफिनेशन लिखी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं. आप देखेंगे कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया एनालिसिस को. 4 कंपार्टमेंट है मेरे पास. पहला जो कंपार्टमेंट है दैट इज डिस्क्रिप्टिव. ओके, तो डिस्क्रिप्टिव में आई हैव रिटन व्हाट इज, क्या है जो भी आपके पास है डेटा में, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. जैसे मैंने एक बात कही थी आपको, जेंडर है तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी है, तो हम उसका यदि परसेंटेज बता रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है कि भाई इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने ये. यदि मान लीजिए आप यदि एवरेज एज की बात करते हैं, मेल की एवरेज एज कितनी है, फीमेल की एवरेज एज, जो आपके पास 50 मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है उनकी एवरेज एज आप निकालते हैं, तो आपने मीन निकाला, तो आप वो मीन लिख रहे हैं. तो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या आएंगे? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आएंगे. ओके, फिर हम बात करते हैं इन्फेरेंशियल एनालिसिस की. इन्फेरेंशियल में व्हाई इट इज, ऐसा क्यों है. यदि उस कॉन्फ्रेंस में मेल की एवरेज एज 45 ईयर्स है और फीमेल की एवरेज एज 32 ईयर्स है, तो ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज डिफरेंट, व्हाई देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस. वहां सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या इनकी एज में, मेल और फीमेल की एज में? वो हम चेक करेंगे किसी टेस्ट के द्वारा. डिफरेंस तो है, एवरेज मीन डिफरेंस है एज का मेल और फीमेल में, बट वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. एक अंतर होता है और एक विशेष अंतर होता है. तो हम बात कर रहे हैं विशेष अंतर की, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं दोनों में. अच्छा. यदि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है टेस्ट के द्वारा, वो अभी अपन इन्फेरेंशियल एनालिसिस डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो खाली समझे हम कि इन्फेरेंशियल एनालिसिस के थ्रू यदि टेस्ट में ये पाया जाता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो फिर हम उसका कारण ढूंढते हैं. तो इन्फेरेंशियल एनालिसिस जो है, इट इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. काय की स्टडी है? कॉज एंड इफेक्ट, है ना. कारण ढूंढते हैं. यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो कारण ढूंढेंगे, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, है ना. पर कई बार मैंने क्या कहा, रिजल्ट जो होता है बहुत सी चीज छुपाए होता है अपने में. कई बार सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना होने के बाद भी हम कारण ढूंढते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों नहीं है. वो भी जरूरी होता है कई बार, है ना. वो यदि हम बहुत डेप्थ में जाते हैं तो, अदरवाइज सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है तब कारण ढूंढते हैं. फिर बात आती है प्रेडिक्टिव एनालिसिस की. इसमें देखें मैंने लिखा व्हाट विल बी, क्या होगा. मान लो कि अपन बात करें रेन की और क्रॉप प्रोडक्शन की, बारिश और उपज, दो चीजों की बात कर रहे हैं हम. हमारे पास 50 साल का डेटा है किसी जगह का कि वहां जो बारिश हुई इतने मिलीमीटर हुई और क्रॉप प्रोडक्शन उस साल इतना टन हुआ. ये डेटा हमारे पास है 50 साल का. अब इस साल का डेटा मेरे पास आ गया बारिश का कि बारिश इतने मिलीमीटर हुई है. तो यदि मैंने मॉडल बना लिया पिछले 50 साल के डेटा से, मशीन लर्निंग, और मैं उसमें ये आज का डेटा डालूं, इस बार की बारिश का डेटा डालूं, तो मुझे इस साल का आउटपुट मिल जाएगा. कितना होगा, है ना. दिस इज मशीन लर्निंग. अंडरस्टैंड. अभी तो मैंने एक ही वेरिएबल से बताया आपको. जरूरी नहीं है कि क्रॉप प्रोडक्शन पे एक ही वेरिएबल रेन से ही काम होता हो. सॉइल क्वालिटी भी तो इफेक्ट करेगी, वहां की जमीन कैसी है, आपके पेस्टिसाइड्स क्या डल रहे हैं कौन सी बीमारी में, आपकी सीड क्वालिटी क्या है, आपने बीज कौन सा चुना है, आपने फर्टिलाइजर्स कौन से यूज किए हैं, आपने इरिगेशन कैसे किया, पानी कैसे समय समय पे दिया है बारिश के बाद, है ना. सनलाइट कैसी है वहां, सूर्य की किरणें कैसी हैं, सूर्य कैसा उगता है, कैसा ढलता है. ये सब चीजें भी तो इफेक्ट डालेंगी क्रॉप प्रोडक्शन पे कि नहीं डालेंगी. तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक चीज पे इफेक्ट डालते हैं. तो जो फैक्टर्स
बहुत सारे फैक्टर्स किसी एक पे इफेक्ट डालते हैं। जो फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं वो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको हम प्रेडिक्टर्स भी बोलते हैं। और जिसके ऊपर ये प्रभाव डालते हैं, जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है यहाँ पे, वो हमारा रिस्पॉन्ड वेरिएबल है, वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा सिंगल होता है, एक ही होता है। पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो उस पर प्रभाव डालेंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आया चीज है? यस सर। अब यदि हम देखें कि आपके मॉडल ने, मशीन लर्निंग मॉडल ने बोला कि X मैट्रिक टन क्रॉप प्रोडक्शन होगा, पर जो डिमांड है वो Y मैट्रिक टन की है उस साल के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा डोमेस्टिक यूज के लिए भी क्रॉप देना है और एक्सपोर्ट भी करना है, जिससे उनको फॉरेन करेंसी प्राप्त हो। वो सब कैलकुलेशन लगा के उन्होंने निकाला अपना अनुमान कि भाई हमें तो Y मैट्रिक टन चाहिए। और आप बोल रहा नहीं, हम तो, हमारा जो मॉडल बोल रहा है मशीन लर्निंग, वो बोल रहा है कि X मैट्रिक टन ही प्रोडक्शन होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग? और देयर इज वेरी ह्यूज गैप बिटवीन X एंड Y, मतलब सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई है आपका और ये डिमांड, इसमें एक बड़ा गैप है। डिमांड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और सप्लाई कम है। तब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट आता है। ये क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप डेटा डालते हो, सब उसमें डला हुआ है डेटा, सॉइल क्वालिटी क्या है, कौन सी जगह की, तो ये बाइफरकेट करके बताएगा कि इस तरह की सॉइल क्वालिटी हो तो सीड कौन सा लेना है। अंडरस्टैंड? दी सॉइल क्वालिटी अपने पास ABC कैटेगरी है और ये अपना PQR सीड की कैटेगरी है, तो ये बताएगा कि एक और ए तरह की सॉइल है तो उसमें P टाइप का वीट डालो, B तरह की है तो Z टाइप का सीड डालो। अंडरस्टैंड व्हाट इट? इज इट क्लियर? यस सर। है ना? फिर ये बताएगा इरिगेशन कैसे करना है, किस तरह की जमीन, उन सबका कैलकुलेट करके पानी कितने कितने बार देना है। बारिश तो गई, खत्म हो गई, पानी तो देना पड़ेगा ना, हफ्ते में देना है, 3 दिन में देना है। वो यही सजेस्ट करेगा, कि इस मिट्टी में कौन सी फर्टिलाइजर डाली जाए और कितनी मात्रा में डाली जाए, ये सजेस्ट करेगा आप। ये पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कंट्रोल में हमारे, खाली रेन और सनलाइट को छोड़ के, इसको रेन और सनलाइट वो हमारे हाथ में नहीं है, सूर्य भी हमारे हाथ में नहीं है क्या? नहीं है ना, वो तो नेचुरल है भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा सूरज, है ना? बाकी जो कंट्रोल लेवल हैं वो सब ये सजेस्ट करेगा आपको, और उसमें कंसीडर करेगा सूर्य की रोशनी को भी, इनको भी, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सजेस्ट करेगा। अब सूर्य कम उग रहा है तो पानी की फ्रिक्वेंसी कम करवा देगा आपसे, इरिगेशन की करवा देगा कि नहीं? अब सूर्य कम उग रहा है तो एवोपरेशन नहीं होगा, एवोपरेशन नहीं होगा तो पानी कम लगेगा आपका। उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा, हर चीज कंसीडर तो करेगा, अनकंट्रोलेबल को भी कंसीडर करेगा, पर इसके बारे में आपको आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि सूर्य को कितना उगना कितना नहीं उगना तो सूर्य पे डिपेंड करता है। पानी कितना गिरना है नहीं गिरना वो बारिश अपने उस पे क्लाउड पे डिपेंड करता है, तो उस पर तो कंट्रोल ही नहीं है हमारा। पर उसको कंसीडर करके ये आपको ये चीजें सजेस्ट करेगा। जब आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे इस मशीन लर्निंग मॉडल में, so this gap will become short, गैप कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि इस टन पे पहुंच जाएगा, पर वी कुड मिनिमाइज द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब समझ में आ गया मशीन लर्निंग क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यस है ना? क्लियर? डिफरेंस है। अब एक और चीज है इसमें, डिफरेंस क्या है? जैसे हम बचपन से चीजें सीखी हमने, और आज भी हम सीख रहे हैं और तुम भी सीख रहे हो, तो हम कुछ एल्गोरिथम हैं जिसके थ्रू हम लोग सीखते हैं।
है ना। ऐसी मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम है, वही एल्गोरिथम जिस तरह से मनुष्य ने सीखा उसी तरीके से मशीन को सिखाते हैं हम, ठीक है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग 4 प्रकार से होती है, ठीक है। अब सुपरवाइज्ड क्या है कि जैसे अपने माता पिता जब हम छोटे रहते हैं तो हम बताते हैं कि बेटा ये काका हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चचा जान है, इस तरीके से वो सिखाया जाता है ना हमें, Yes, sir. ये बाजी हैं, तो इस तरह सिखाते हैं पूरा। और पिक्चर वगैरह दिखाते हैं फोटोज की, ये लॉयन है, ये शेर है, ये बकरी है, बकरी दिखी तो हाँ ये बकरी है ना। इस तरीके से सिखाते कि नहीं सिखाते, ये सुपरवाइज लर्निंग हुई ना, अपन बताते हैं उनको, ये एक सुपरवाइज लर्निंग है। तो आपको कुछ सुपरवाइज किया जा रहा है तब आप सीख रहे हो। एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, है ना। आप देखेंगे कि आप किसी को आवाज दे रहे हो क्या, या बच्चा ऑटोमेटिक कुछ चीजें सीख जाते हैं, आपने नहीं सिखाई होती हैं, सीख जाते हैं कि नहीं सीख जाते। कुछ गालियां बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे छोटे, उनको नॉलेज नहीं होता, वो देखते हैं बड़ों को सुनते हैं, क्या सीख जाते हैं, वो बोल देते हैं कई बार, होता है कि नहीं होता है ऐसा। होता है। दैट इज अनसुपरवाइज्ड। उन्होंने मतलब अनसुपरवाइज्ड यानी कि उनको सिखाया नहीं गया, ठीक है, वो खुद ही सीख गए। वो अनसुपरवाइज्ड का मतलब होता है कि वो खुद अपने सुपरविजन से सीख गए, खुद से सीख गए। इज इट क्लियर। ऐसा होता ही है, ऐसा हम बहुत सी चीजें सीखे खुद से, परसीव करके, परसेप्शन जिसको हम बोलेंगे, है ना, खुद के सेल्फ परसेप्शन से हम कुछ चीजें सीखते हैं ना। सो दैट इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। एक होता है रेनफोर्समेंट। अब मान लो बच्चे के हाथ में हमने कोई पेन दिया, और बच्चा क्या करेगा, जनरली एक छोटा बच्चा होगा तो मुंह में डालेगा पेन, लेगा ना। फिर हम क्या करते हैं, या तो उसको समझाते हैं बड़े प्यार से, बेटा मुंह में मत डालो लग जाएगी, है, या फिर डांटते हैं, हक मुंह मत डालो। एक ये भी तरीका होता है, और एक तरीका होता है एक चंपट भी लगा के दे देते हैं, होता है कि नहीं। ये चीज होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग, और यही रेनफोर्समेंट लर्निंग हम लोग चैटबॉट में यूज करते हैं। हर जगह अलग अलग होती है। इमेज क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज्ड होती है, चैटबॉट में रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल होता है कि वो हमें पहले जब हमें ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है, चैटबॉट को ट्रेन करने में 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंटेंशन पहचानता है, कई बार गलत इंटेंशन दे देता है हमें निकाल के। जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो इंटेंशन की पूरे हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, ये इंटेंशन ये इसकी है, इसकी है, इसकी है। तो यदि वो गलत वाले की हाई प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो फिर हम उसको मना करते हैं, ये नहीं, ये वाला है। तो फिर अगली बार वो थोड़ा सा माइंड में ले लेता है कि नहीं ये वाला होगा, इस तरह से लिखेगा सेंटेंस तो ये इंटेंशन होगा। इज इट क्लियर। कोई सेंटेंस तो हर एक अलग प्रकार से लिख रहा है ना, हर व्यक्ति। और वो जब मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं तो वो 50 लोगों को मॉडल दिया जाता है, पीओसी मॉडल बोलते हैं हम जिसको, उसका एक्सेस दिया जाता है, और वो डेली 2-2, 4-4 घंटे उस चैटबॉट से बात करते हैं। और उसके फिर फाइनल जो टीम होती है हमारी, वो फिर उसका एनालिसिस करती, कहाँ सही रिस्पॉन्ड किया, कहाँ नहीं किया, और जहां गलत किया फिर वहां उसको सुधार करवाते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू। समझा। सो यही एल्गोरिथम मशीन को भी सिखाने में यूज होती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे आपकी एज में आ गए, तो आज यदि आपके अब्बू को मोबाइल खरीदना होगा तो आप कुछ एडवाइस करोगे कि नहीं करोगे उनको, कौन सा लेना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देख के, है ना। भाई वो आपसे एडवाइस नहीं मांगेंगे, फिर भी आप करोगे कि नहीं करोगे, है ना। नाउ यू बिकेम इंटेलेक्चुअल, आप एआई हो, अंडरस्टैंड कि आप, क्या होता है कि मशीन लर्निंग की जो खुराक है वो क्या है, डेटा है ना। जितना डेटा मिलेगा वो एआई में कन्वर्ट हो जाती है बाद में ऑटोमेटिक। वो अलग से कोई एल्गोरिथम नहीं होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एल्गोरिथम में वही एमएल बच्चा है और एआई एडल्ट है। अब अंतर समझ में आया। हाँ समझ गया, है ना। तो पहले आप क्या थे, एमएल थे, अभी एआई हो गए, अब एआई हो गए आप लोग।
अब आप घर के डिसीजन में रेकमेंड करने लगे हो, कोई चीज सजेशन देने लगे हो, आपका सजेशन मान्य किए जाने लगा कुछ कुछ जगहों पे, है ना, बिकॉज यू आर नाउ बिकमिंग एआई। तो ये चीज होती है, ये डिफरेंस होता है बस। अब समझ में आ गया मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, Yes, sir. Yes, क्या sir. डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। Yes. अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या स्लाइड है। यहाँ मैंने और थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश की है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी पूरी यदि पिक्चर देखें, एक बड़ी पिक्चर देखें तो वो क्या है। यहाँ भी मैंने वही लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग सैंपल डेटा, है ना, सैंपल डेटा ही लेते हैं ना हम लोग किसी भी चीज का, कोई पॉपुलेशन डेटा पे तो काम कर ही नहीं सकते हम। Yes. टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द वर्ल्ड, मतलब पॉपुलेशन के बारे में समझने के लिए हम सैंपल का डेटा लेते हैं और उसको हम लोग उसके जो रिजल्ट्स आते हैं हम मान लेते हैं कि वो पूरे पॉपुलेशन पे लागू होते होंगे। Yes. मान लो हमें कई बार पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम होते हैं, जैसे कॉइन को आप टॉस करेंगे तो क्या पैरामीटर हैं उसके, क्या रिजल्ट आएंगे, एक सिक्के को उछालेंगे क्या दो result? रिजल्ट रहेंगे सर। दो रिजल्ट रहेंगे। At the tails. अब वो रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी दोनों रिजल्ट की, 1/2। 50-50% प्रोबेबिलिटी दोनों की आ रही है ना। ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कॉइन है और मैं उसको 100 बार टॉस करता हूँ और वो फेयर कॉइन है, मतलब ऐसा नहीं कि वो बायास हो, एक तरफ वजन ज्यादा एक तरफ कम है, ऐसा नहीं, फेयर कॉइन है ना, बैलेंस्ड कॉइन है। उसको मैं 100 बार टॉस किया तो क्या एक्चुअल में 50 बार टेल आएगा, 50 बार हेड आएगा क्या? नहीं सर, नहीं. पॉसिबल नहीं है, नहीं। है ना। हो सकता है कि 60 टाइम्स हेड आ जाए, 40 टाइम्स टेल आए, या 55 टाइम्स हेड आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी लिटिल बिट डिफरेंस, है ना। कई बार 80-20 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। पर यदि मैं 100 बार के एक्सपेरिमेंट कई बार करूं 100 बार का, जो एक बार मैं 100 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने 1000 बार किए। कितने बार? 1000 टाइम्स। पहले 100 बार उछाले, फिर शाम को फिर 100 बार उछाले, दूसरे दिन फिर 100 बार, उसके रिजल्ट लिखता गया, है ना। ऐसे मैंने 1000 बार किए। यदि मैं इन सब के रिजल्ट्स का प्रोपोर्शन देखूंगा तो वो बहुत करीब आएगा 50-50% के, यदि एवरेज लूंगा 100 के, मतलब 1000 बार जो मैंने किया है, आएगा कि नहीं आएगा। जितना मेरा साइज बढ़ाऊंगा, साइज यानी जितने ज्यादा बार मैं करूंगा उसको, उतने ज्यादा वो पॉपुलेशन के करीब पहुंचेगा कि नहीं रिजल्ट। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आगे अपन लोग पढ़ेंगे इसको डीप में, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना। कोई भी चीज पॉपुलेशन के करीब पहुंच जाती है यदि आप उसको कई बार करते हो क्या, और उसका एवरेज लेती हो, तो वो पॉपुलेशन के बहुत करीब होगा। इज इट क्लियर? यस। अब यहां मैं लिख रहा हूं अबाउट द पॉपुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी वही प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड शब्द है, अनिश्चितता। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है अनिश्चितता, है ना। संभावित, संभावना का मतलब क्या, फिक्स थोड़ी है, Right. है ना। दैट इज द अनसर्टेनिटी। सो दैट इज, अनसर्टेनिटी इज वर्ड फॉर द प्रोबेबिलिटी in the context of probability or in the context of uncertainty, both are the same. But it is the science of learning from data. डेटा से सीखने का एक ये विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टैंड? Yes. अब अपन इसको समझते हैं पूरी चीज को। हमने यहां से चालू किया, क्वेश्चन ऑफ आइडिया वी हैव, कि व्हाट डू वी वांट टू नो अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, है ना। ये पॉपुलेशन है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, है ना। टेक ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, हमने एक सैंपल चूज किया और वहां के लोगों की हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी। अंडरस्टैंड? यस। अब इसको
गैदर करने के बाद हमारे पास ये सैंपल आ गया। इस सैंपल को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैंने बताया ना, मीन, मोड, मीडियन, परसेंटेज, Yes, sir. है ना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया हमने। डिस्क्राइब द सैंपल डेटा न्यूमेरिकली एंड विजुअली। विजुअली भी मतलब ग्राफ के द्वारा भी हम लोग उसको बताते हैं, हिस्टोग्राम हुआ, बार प्लॉट हुआ, पाई चार्ट हुआ, और न्यूमेरिकली भी टेबल के फॉर्म में भी बता सकते हैं, है ना, कि इतने मेल है इतने फीमेल है, टेबल में भी दे सकते हैं वैल्यू, या ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, मीन वगैरह जो भी मीन, मोड, मीडियन। इसके बाद आते हैं इन्फ्रेंशियल पे। तो inferential statistics test a hypothesis, estimates a value of xy in relationship with the sample data to make the inference about the population. तो हमारे पास यदि पॉपुलेशन पैरामीटर है पहले से कुछ, जैसा कि हेड टेल का हमें मालूम है 50-50% चांस होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर तो ये बोलता है, और हमने एक्चुअली किया तो मान लो 55 टाइम्स हेड आया और 45 टाइम्स टेल आया। तो हमारा जो पहला प्रोपोर्शन आया वो 55/100 है हेड का, और वहां पर क्या था 1/2 था, 50/100 था पॉपुलेशन का। इज इट क्लियर? Yes. तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, और उस डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड जो एक एरर होती है उससे डिवाइड करेंगे। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है आगे इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के चैप्टर में, है ना। उससे डिवाइड करते हैं उस डिफरेंस को, एक्चुअल के और पॉपुलेशन के डिफरेंस को हम ऐसी से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है पी वैल्यू के अकॉर्डिंग कि पी वैल्यू यदि 0.05 से ज्यादा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो हम उसके थ्रू पता कर लेते हैं कि हाँ वो पॉपुलेशन में किस प्रकार से ट्रीट हो रहा है। इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में हम फिर बता देते हैं कि हाँ पॉपुलेशन में भी ऐसा ही होता है ना कोई चीज। तो कई बार हम लोग डेटा की स्टडी से पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हैं, और कई बार पॉपुलेशन की स्टडी से को हम लोग पॉपुलेशन के उस पैरामीटर को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। तो अभी जो कॉइन वाला केस है उसमें हम जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना। पॉपुलेशन तो बोल रहे हैं कि 50-50%, हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और समटाइम्स हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं है, तो हम वो चीज फाइंड आउट करके बताते हैं कि पॉपुलेशन में भी ऐसा होता है। ठीक है, Okay. एक सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी को चपाटा मारेंगे तो कोई रिस्पॉन्स करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई पलट के देगा आपको, और कोई नहीं भी देगा, की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर। है ना। कोई नहीं भी देगा और कोई पलट के देगा। तो वो पॉपुलेशन में तो कुछ नहीं है, हमें पॉपुलेशन पैरामीटर तो नहीं मालूम कि 50-50% ही चांस होंगे, 50% मार सकता है पलट के, 50% नहीं मार सकता, ऐसा भी नहीं है क्या ऐसा? वाइन के साथ तो है, पर आदमी किसी को चपाटा मारे तो उसका चांसेस नहीं है कि 50% पलट के पड़ेगा, 50% नहीं पड़ेगा। 50-50% नहीं बोल सकते, और 20-80 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। तो हमें पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं मालूम, तो फिर हम सैंपल करेंगे कलेक्ट, और फिर देखेंगे, फिर उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा करके दूसरे तरह के टेस्ट लगा के फिर निकालेंगे नहीं ऐसा होता है, तो पॉपुलेशन में भी ऐसा होता होगा। 30% मारेंगे, 70% नहीं मारेंगे, हमारी स्टडी ये बोलती है। फिर हम मानेंगे कि हाँ ये पॉपुलेशन में भी 30-70 होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। हम अपने सैंपल से पॉपुलेशन का डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार की स्टडी जो होती है, ये इन्फ्रेंशियल तक की बात कर रहा हूं, यही इन्फ्रेंशियल प्रेडिक्टिव में भी यूज होता है। क्या आप डिस्क्रिप्टिव भी यूज करते हो, इन्फ्रेंशियल भी यूज करते हो, फिर प्रेडिक्टिव आता है, तो प्रेडिक्टिव में भी वही यूज होता है। ठीक है, है 15 मिनट है अपने पास अभी, जस्ट अ मोमेंट, अपन इसको और समझे। मैंने कई डेफिनेशंस लिखी हैं स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव में, उसको प्रॉपर समझने के लिए। बेसिक तो वही जो शुरू में बताई थी, उसी के आसपास हैं ये सब डेफिनेशंस। Statistics about the reasoning with data in the context of uncertainty in the order to learn the understand things about the world around us। वही चीज है, context of probability and certainty की बात कर रहा हूँ। It is the science of learning from data, यही सब मैंने पिछले लिखा था, इसको मैंने थोड़ा दूसरा ग्राफ लिया है। पॉपुलेशन है हमारे पास।
अब यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी और पैरामीटर्स और इन्फ्रेंस और डिस्क्राइब, कंपेयर एंड कंक्लूजन, इन सब के बारे में बात करूंगा। स्टैटिस्टिकल पैराडिग्म की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ क्या हुआ, ये पॉपुलेशन हमारा प्रोबेबिलिटी बात करें तो द रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन टेल अस द लाइक्लीहुड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल दैट माइट अराइज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से the rule of probability can tell us likelihood of different types of samples that might arise from a particular population। तो ये हमें बताता है कि कितने तरह के हम सैंपल ले सकते हैं एक पॉपुलेशन से, है ना। likelihood of different types of samples, है ना, probability। and then we take the samples and we describe and compare. Data is collected from the samples, and with the sample data in hand we attempt to create a statistical summarize and pictures that give the salient features of the data collected। मान लो आपने, जब आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं है, you have to decide the population parameter। आपने 2 सैंपल लिए, है ना, तभी तो आप पॉपुलेशन पैरामीटर डिसाइड कर पाओगे ना। अभी तो आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर ही नहीं मालूम कि कौन क्या रिएक्ट करेगा। तो आपने 2 ग्रुप बनाए, है ना, 100 लोगों के या 50 लोगों के, और वो ग्रुप रेंडमली आपने चुने लोग उसमें, और उनसे बोला यार जाके किसी को चंपट मारना है यार, क्या राह चलते किसी को भी चंपट मारना। अब वो 50 लोग एक ग्रुप के अलग जगह आपने भेज दिए चपाटा मारने के लिए, 50 लोग कहीं और भेज दिए चंपट मारने के लिए। अब उनके रिजल्ट जो आएंगे, मान लो एक ग्रुप में 50 लोग जो आपने भेजे थे, 40 लोग वापस चंपट खा के आ गए, ठीक है, 10 को नहीं पड़ा, 40 को पड़ गया। और एक ग्रुप में 20 लोग चंपट खा के आए, 30 को नहीं पड़ा। इज इट क्लियर? 2 ग्रुप भेजे थे आपने। अब क्योंकि यदि हम इनके प्रोपोर्शन देखें, यहां तक प्रोपोर्शन की बात हुई कि मीन तो निकल नहीं सकता, तो 40/50 जो खा के आए, है ना, तो 4/5 का प्रोपोर्शन आया, और इधर 3/5 का प्रोपोर्शन आया। तो इस प्रोपोर्शन को हम स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा दोनों प्रोपोर्शन में, समझ रहे हो इस बात को, यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो वो पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं साहब, सेम सही बात, इतना होता है क्या, डिफरेंस तो होगा पर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो हम एक फिगर आउट कर सकते हैं, उसको बीच का एक फिगर निकाल सकते हैं, और फिगर हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन पे साहब इतने लोग यदि चपाटा मारोगे तो इतना रिस्पॉन्ड मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग पॉपुलेशन का पैरामीटर 2 सैंपल के थ्रू डिसाइड करते हैं, कम से कम 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, मिनिमम 2 सैंपल, तभी तो आप उसको कंपेयर करके पॉपुलेशन का पैरामीटर बनाओगे ना। सिंगल से तो बना नहीं सकते, सिंगल में तो आपको पॉपुलेशन पैरामीटर चाहिए। जैसे कॉइन के केस में एक कॉइन उछाल रहे हो आप, तो पॉपुलेशन पैरामीटर चाहिए ना आपको, है ना, ये चाहिए। And describe, data is collected from the sample, and with sample data in hand we attempt to create a statistical summaries and picture that give the salient feature of the data collected। describe का तो मैं बता चुका हूँ, descriptive analysis, inference का भी बता चुका हूँ, पैरामीटर्स मैंने बता दिया। पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक्स होती है सैंपल की। इज इट क्लियर? पॉपुलेशन का मीन पैरामीटर कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। पॉपुलेशन का जो भी स्टैटिस्टिक्स होगी वो पैरामीटर कहलाती है, पर जो सैंपल के जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, सैंपल का जो मीन होगा वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यदि मैं पॉपुलेशन मीन बोलूंगा तो क्या कहलाएगा वो? यदि मैं पॉपुलेशन मीन बोलूंगा तो क्या कहलाएगा? पैरामीटर या स्टैटिस्टिक्स? नहीं नहीं, पॉपुलेशन का मीन पैरामीटर होगा। पॉपुलेशन की जो भी चीज होगी वो पैरामीटर कहलाएगी। P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, याद रखिएगा। ओके सर। S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। सैंपल मीन स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल मीडियन स्टैटिस्टिक्स है, समझ गए। पॉपुलेशन मीन पैरामीटर है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर है। अंडरस्टैंड? यस। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर।
ये मैंने बताया है कि डेटा एनालिटिक्स में कुछ और भी चीजें रहती हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा भी करते हैं कई बार। तो ये इधर आता है, थोड़ा सा बाहर भी रहता है, थोड़ा इनके साथ भी है। पूरी चीज तो स्टेटिस्टिक्स तो ओवरऑल अप्लाई है सभी जगह, है ना। तो एआई उसके अंदर मशीन लर्निंग होता है, फिर उसके अंदर डीप लर्निंग होता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, पर अभी अपन जो सीख रहे हैं वो खाली ये ब्लू रीजन ही सीखेंगे, है ना। अपन इसमें नहीं जाएंगे डीप लर्निंग में। दैट इज अ न्यूरल नेटवर्क और ये सब होता है, टेंसर फ्लो वगैरह। उसके लिए मशीनें भी, आपके लैपटॉप भी वैसे चाहिए, है ना। और क्लाउड वगैरह पे भी यदि अमेजोन पे और उस पर करते हैं तो वो लोग इतना फ्री देते नहीं है हमें, बोलते जरूर हैं। गूगल जरूर थोड़ा बहुत हमें फ्री कर देता है वो इनको करने, क्योंकि ये सब इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल में जीपीयू की इन सब की जरूरत पड़ती है जो हमारे सिस्टम्स में जनरली होते नहीं है। हाई एंड जीपीयू वगैरह चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी डीप लर्निंग की बात नहीं करते हैं। उसके लिए स्पेशल बेच बनता है, और उसके लिए हो सकता है कि हमें पैसे दे के भी क्लाउड की सर्विसेज लेना पड़े उस काम के लिए। तो फिर उस हिसाब से डिसाइड होता है, Okay. ठीक है। तो वो अपन बाद में हम लोग देखेंगे, पहले ये इतना कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर वो बनते हैं बैच, साल में 1-2 बनते हैं, और उसमें काफ़ी फिर वो इंटरेस्टेड लोग ही आते हैं उसमें, क्या जिनको उस फील्ड में काम करना ही है वही लोग आते हैं और वही सीखते हैं फिर उस पे। उसमें क्या खर्चा भी लगता है ना। अब हम बात करें कि विच लैंग्वेज शुड यू लर्न फॉर डेटा साइंस। देखिएगा, जो पाइथन है वो डेटा साइंस नहीं है या डेटा एनालिटिक्स नहीं है। आर जो है वो डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स नहीं है। डेटा एनालिस्ट तो आप जावा से भी कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट आप तो C++ से भी कर सकते हो। दीज आर द टूल्स, ये खाली टूल्स हैं। डेटा एनालिटिक्स जो है वो नॉलेज है आपका, जो कंसेप्ट्स आपको अभी पढ़ाए जा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। समझ गए आप? बात क्लियर हुई? Yes, sir. डेटा एनालिटिक्स आपके Yes, sir. माइंड में रहेगा, ठीक है। खाली कोडिंग डेटा एनालिटिक्स नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? Yes, sir. मेन जब स्टैटिस्टिक्स को हम कोडिंग के साथ यदि किसी टूल के साथ यूज करते हैं तो वो डेटा एनालिसिस हो जाता है एक प्रकार का। और आप वो मैनुअल भी कर सकते हो डेटा एनालिसिस, पहले तो मैनुअल ही करते थे लोग, तो बाद में कैलकुलेटर आए तो कैलकुलेटर पे करने लगे कुछ चीजें, कैलकुलेशन। फिर उसके बाद कंप्यूटर आए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करने लगे फिर, है ना। अभी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, उस पे भी करते हैं लोग। SPSS है एक IBM का टूल है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, उस पे भी करते हैं लोग। सेज है, उस पे भी करते हैं लोग। तो these are the tools which helps us to do the analysis. क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. अब हम सेज क्यों नहीं ले रहे, हम लोग SPSS क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि these tools are basically a software, और सॉफ्टवेयर ऐसा है। और जो हम लोग पाइथन या आर की बात करें, आर प्रोग्रामिंग या पाइथन या जावा जो आप करते हो, ये क्या है, ओपन सोर्स है, वही क्या नहीं है, Yes, फ्री sir. है, ओपन सोर्स है। और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग भी आपको लेना है, पैसा भी देना पड़ेगा, पहली चीज। चलो लाइसेंसिंग नहीं भी है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है, तो अपने हिसाब से वो उनका वो है, कस्टमाइज है वो तो स्कूल बस की तरह हो गया, आपकी कॉलेज की बस की तरह हो गया कि आप कॉलेज से बैठोगे 1.5 घंटे में ही घर पहुंचोगे। यदि आप आपकी अपने व्हीकल से जाते हो, अपनी मोटरसाइकिल से, अपने स्कूटर से जाते हो, तो आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट पहुंचते हो। अब जब स्कूल बस या कॉलेज बस है तो वो तो पूरा घुमाते हुए रूट के हिसाब से लेके जाएगी आप, वहां वो सॉफ्टवेयर है। जो कॉलेज बस है ना, वो सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको उतने प्रोसेस से करना ही पड़ेगा कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू लूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट करूँ, इसके बाद ये करूँ, फिर इसके बाद ये करूँ, फिर जा करके मुझे रिजल्ट मिलेगा। होगा कि नहीं ऐसा? हाँ Yes, sir. है ना। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शॉर्ट स्क्रिप्ट बना सकते हो। अच्छा. डिपेंड्स ऑन योर माइंड।
आया समझ में? एक फॉर लूप Yes, बनता sir. है, मैं आपको बताऊंगा, फॉर लूप इतना बड़ा बनता है और वो फॉर लूप बनता है करीब 150 लाइन का, अच्छा। और उसको जब हम वेक्टराइज करते हैं और उसमें कुछ चीजें यूज करते हैं, वो फॉर लूप बच जाता है मुश्किल से 7 लाइन का कोड रह जाता है। अब जो 150 लाइन का कोड है वो समय ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? इटरेशंस बहुत होंगी उसमें, Yes, sir. और जो 5 लाइन का कोड होगा वो समय कम लेगा। हम्म। कोई पैकेज यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कोई पैकेज यूज नहीं, कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करूंगा, पर आप देखेंगे कि मेरे टाइम बहुत, जो 12 आपका मतलब 12 मिनट का टाइम लग रहा था, वो टाइम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पहुंच जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में 12 minutes will convert in friction of second or doing the same process. So that is the work of programming language. It depends on you कि आप कितना कैसा कोड लिख रहे हो उसके लिए, ठीक है? Okay, sir. सो कोई भी लैंग्वेज है डेटा साइंस की, हमें कैसे चूज करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो वो लैंग्वेज में सबसे पहली चीज स्पेसिफिसिटी होना चाहिए। जो टास्क आप करने जा रहे हो डेटा साइंस का, उसमें वो स्पेसिफिक लैंग्वेज उसके लिए होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्पेसिफिक, यदि आप जनरल लैंग्वेज पे करोगे तो आपको वो पूरी प्रोसेस, जनरल प्रोसेस से निकल करके फिर आप वो उस पॉइंट पे पहुंचोगे कि नहीं? यस सर। तो वो चीज होगी, तो इसलिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आर है, पाइथन है, पाइथन जनरल पर्पस लैंग्वेज है। पाइथन 4 वर्टिकल होते हैं हमारे पास आईटी में। पहला होता है वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बोले हम उसे। दूसरा होता है मोबाइल एप्लीकेशन, है ना? तीसरा होता है आपका एंटरप्राइज लैंग्वेज, जो हम लोग एनालिसिस वगैरह में यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एसपीएसएस हो गया, ये सब जो है आर पाइथन एंटरप्राइज लैंग्वेज हो गया। चौथा होता है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, जो इंटरनल आईओ सिस्टम और चिप वगैरह की जो प्रोग्रामिंग होती है, एम्बेडेड हाँ। प्रोग्राम। तो 4 वर्टिकल पे काम करता है। पाइथन 3 पे काम करता है, एक को छोड़ के। तो जनरल पर्पस लैंग्वेज हो गई। खाली मोबाइल एप्लीकेशन को छोड़ के पाइथन पे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, पाइथन पे आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, पाइथन पे आप एंटरप्राइज लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हो, एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सब में। पाइथन आप एम्बेडेड की तरह भी उपयोग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग की तरह। तो 3 वर्टिकल पे काम करता है। तो 3 वर्टिकल पे काम करता है तो जनरल पर्पस लैंग्वेज। फिर स्पेसिफिसिटी कहाँ हुई, कहाँ इसमें? ये तो जनरल पर्पस हो गई चीज, हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। तो उन्होंने जनरल पर्पस का जो क्राइटेरिया है, जब आप एंटर करते हो और हाल में घुसते हो, तो हाल में उन्होंने बहुत लिमिटेड रखा हुआ है ना? डेटा टाइप्स और थोड़ा बहुत ऑपरेशन, बस वो जनरल होंगे सबके लिए। पर आप जब स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे डेटा साइंस में, तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जो आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो उससे Yes, वो sir. स्पेसिफिक बन जाती है। वो लाइब्रेरी जहां आपने अप्लाई करी वो स्पेसिफिक हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? जो आप लाइब्रेरी यूज करोगे, नंपाई या पांडास या साइकिट लर्न, जो डेटा साइंस के लिए उपयोग करोगे, वो वेब एप्लीकेशन के लिए थोड़ी यूज करोगे, जेंगो यूज होगी। अंतर समझ में आ रहा है कि हाँ आपने सर। कहा लाइब्रेरी चेंज करी, अब एंटर तो हाल में हो गए क्या जनरल पर्पस में। जब पाइथन से जाओगे, एनाकोंडा से जाओगे, तो वो टोटली वो तो डेटा साइंस के लिए अलग ही कर दिया उन्होंने दरवाजा। अच्छा। हाल में नहीं जाना है आपको क्या? हाँ हाँ हाँ। वो जो डोर है ना, एनाकोंडा के थ्रू जा रहे हो आप, पाइथन के थ्रू नहीं जा रहे हो। आप एनाकोंडा से यदि एंटर कर रहे हो तो आप तो डेटा साइंस में ही घुसोगे सीधे। तो सर सेम कोड हम लोग उसमें पाइथन शेल में भी यूज कर सकते हैं ना? सेम सेम, कोड में कोई अंतर नहीं आता। अच्छा। कोड में कोई अंतर नहीं आता। एनाकोंडा क्या होता है, बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो जिसमें आप आर भी रन कर सकते हो, आप पाइथन भी रन कर सकते हो। अच्छा तो अच्छा। पाइथन की जितनी आईडी है वो सब रन कर सकते हो। पाइचाम हुआ, चाहे जुपिटर हुआ, चाहे स्पाइडर हुआ, चाहे एटम हुआ, है ना, रोडियो हुआ, आप कुछ भी तो उपयोग कर सकते हो। स्पेशली डेटा साइंस के लिए यूज किया है वो? डेटा साइंस के लिए स्पेसिफिकली। Okay,
तो उसमें आर भी चलाते हैं, पाइथन भी चलाते हैं लोग, ओके ओके ओके। है ना। तो एनाकोंडा, वही मैं बता रहा हूँ, एनाकोंडा के दरवाजे से आप घुसे उस दरवाजे से, तो आप सीधे डेटा साइंस में ही जाओगे, फिर आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, वहां पे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते यदि एनाकोंडा में गए। यदि आप पाइथन से एंटर हुए तो पहले जनरल में जाओगे, जब हाँ। लाइब्रेरी उपयोग करोगे तो आप स्पेसिफिक में चले जाओगे। ओके। अंतर समझ में आ गया दोनों का, हाँ हाँ। है ना। जनरलिटी की बात कर रहा हूं तो ये पाइथन में भी है ना। पाइथन में क्या है, जनरलिटी तो है मेन चीज। जनरलिटी का मतलब है कि जितने आप जावा में आपने पढ़ा है, क्या नाम है, जुबेर, यस सर। इंडेक्सिंग का ऐसे स्टार्ट होती है, कौन से नंबर से स्टार्ट होती है? आप इंडेक्स करते हो ना नंबर को, 0 1 2 3 ऐसा। हाँ, कौन से नंबर से स्टार्ट होता है? 0। जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर, यस। है ना। होल नंबर हुआ ना, मतलब ये हाँ। होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल से नहीं होता है। तो ये जनरलिटी है पाइथन में, कि पाइथन में भी इंडेक्सिंग जो है जीरो से स्टार्ट होती है। इज इट क्लियर? ये जनरलिटी है। पर आर में इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर से। इज इट क्लियर? तो वहां जनरलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है जनरलिटी का मतलब? सर तो पाइथन में जनरलिटी है क्योंकि जनरल पर्पस लैंग्वेज भी है वो, तो इसलिए उसमें जनरल पर्पस लैंग्वेज के कारण वो जनरल लैंग्वेज के जो पैरामीटर्स होते हैं वही पैरामीटर्स पाइथन में डले हुए हैं। क्लियर? अब तीसरी चीज पे अपन आते हैं, प्रोडक्टिविटी। अपन चाहते हैं यार कोई भी लैंग्वेज जो फास्ट प्रोसेस करे, है ना। प्रोडक्टिविटी तभी तो निकलेगी आप फास्ट प्रोसेस करोगे, है ना। प्रोडक्टिविटी और दूसरी परफॉर्मेंस की बात अपन बाद में करेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब फास्ट प्रोसेस, परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। प्रोडक्टिविटी तभी निकलेगी जब आप किसी चीज को फास्ट करोगे, तो वो लैंग्वेज फास्ट पेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि पाइथन जो है सी और सी प्लस प्लस पे बेस्ड है, उस पे बनी है। और सी सी प्लस प्लस क्या है? हाँ जुबेर बताओ, सी प्लस प्लस क्या है या सी क्या है? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है कि नहीं है? हैं? तो जुबेर नहीं दिख रहे हैं, जुबेर फिर आउट हो गए। एक मिनट सर, मैसेज करता हूँ। आ रहा होगा, कोई नेट का प्रॉब्लम रहता है उसके, इंटरनेट का कुछ। हाँ वो तो है। आएगा आएगा, कुछ नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। आजारी पडण्याचा प्रयोग। तुम लोग वाईफाई यूज कर रहे हो मोहसिन, या फिर ये मोबाइल नेट यूज कर रहे सर वाईफाई हो? हाँ वाईफाई ठीक है। जुबेर के यहाँ भी लगा है ना वाईफाई? नहीं लगा है? लगा है पर पता नहीं अभी किधर है। जावई बापूंच्या गोष्टी आजोबा भूतांचा जन्म माझ्या बापाची पेन निराधारी इत्यादि कथा संग्रह प्रसिद्ध है। ये सब कथा रिप्लाई नहीं का नाम है। व्हाट्सएप किया उसको? नावेतील तीन प्रवासी हा अनुदान तो कैसे डेटा खत्म हो गया डेटा खत्म हो गया उसका। निबंधही प्रसिद्ध आहे। त्याने कॉल करके पूछ लो, एक सेकंड मुलांचे आजपर्यंत कॉल कर लो उसको। आजारपणाबाबतचे विचार व त्याचे दवाखान्यात आ गया शायद, आ गया, मानसिक व विनोदी वर्णन आया? आ गया, आ गया, आ रहा है। यानी मुलांचे आज जब बच्चे बीमार गिरते हैं तब वो दवाखाने नहीं में है। कैसा हाँ, व्यवहार आ गया। करते हैं। आ गया। जो बातें होती है, जो विनोद जोक्स होते हैं, वो इसमें 2 मिनट म्यूट Sorry कर sir, रहा हूँ मोहसिन, है ना। सर वो इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा जुबेर ये हाँ, बताओ यस सर। कि सी सी प्लस के बारे में पूछ रहा था ना, जी सर। तो सी सी प्लस प्लस जो है उसको क्या कहते हैं? वो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे उसको? सी प्लस प्लस मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाँ है ना। कोई जितनी भी लैंग्वेजेस बनी उन्हीं पे तो बनी है हाँ सर। ना।
Clear? Yes, बात sir. मेरे दिमाग में आई तो मेरे को शर्म आने लगी। We could say that the एक बार देख- C++ are the mother of all languages, है ना? एक बार तो भी अपन Yes, दिमाग में तो आती है, ऐसा उसको लगता है। जब अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की, टाइफाइड, क्षय, just a निमोनिया, moment. असली मोटी मोटी गोड़ दुखनी, रंगूलिया बातुला, यानी ये ऐसी बड़ी बड़ी जो बीमारियों बाजू में रहने दो, पण ठंडी ताप यानी बुखार, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या बातमीला यायला हवं होतं. यानी मेरे Just a moment, yeah. ओके, मोहसिन की इधर से आवाज आ रहा था. कहाँ गया वो अपना पीपीटी? ओके, तो ये देखें अपन कि जहाँ प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था कि लैंग्वेज जो होने चाहिए वो प्रोडक्टिविटी का होगी जब अपन फास्ट पेस में कुछ काम करेंगे ना, जल्दी जल्दी काम हो, स्पीड हो. तो प्रोडक्टिविटी कब पॉसिबल है? और क्योंकि पाइथन जो है वो C++ प्लेटफॉर्म पे बना हुआ पूरा, तो फास्ट होगा कि नहीं होगा? फास्ट होगा, क्योंकि वो हाँ. बेसिक जो लैंग्वेज है उसी पे बना हुआ है ना पूरा. इज इट क्लियर? सो इसलिए ये फास्ट है. प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा है, आर की कम है. आर उतना फास्ट नहीं है. छोटे डेटा में तो नहीं पता चलता है दोनों का स्पीड का. आप 500,000, 2,000, 5,000 का डेटा होगा, 10,000 का डेटा होगा ऑब्जर्वेशंस का, तो पता नहीं चलेगा. पर जहां हम बिग डेटा की बात करें, जब मिलियंस ऑफ रोज होती हैं क्या, वहां पर प्रोडक्टिविटी में पता चलता है कि आर को उसी टास्क को पूरा करने में, मान लो कोई कमांड ऐसा कर दिया कि आर को 2.5 घंटा लग रहा है, वहीं पाइथन उसको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में कंप्लीट कर देता है. अब इतना अंतर है बड़े डेटा में. इज इट क्लियर? तो प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी है? पाइथन की अच्छी. ठीक है, बिग डेटा के हिसाब से. छोटे डेटा में पता है. परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बाइट यदि हम बात करते हैं तो पाइथन का परफॉर्मेंस अच्छा है मशीन लर्निंग के हिसाब से. पर स्टैटिस्टिक्स का वो अपन इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की बात करें यदि, तो आर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा मिलता है. बात समझ में आ रहा है आपको? डिस्क्रिप्टिव तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. पर इन्फ्रेंशियल की जब हम बात करेंगे, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की बात करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे, तो वहां आर इज बेटर देन पाइथन. अच्छा, ठीक है. जब प्रेडिक्टिव की बात करेंगे, प्रेडिक्टिव में भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है मान लो, तो आर पे आप काम ही नहीं कर सकते. राइट. अनस्ट्रक्चर्ड यानी इमेजेस हैं, चैटबॉट बनाना है आपको, है ना, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. तो आर पे सिखाने के पर्पज से तो हम सिखा देते हैं. आर पे सिखाना अलग बात होती है, पर प्रैक्टिकली उसको करना, नहीं कर सकते, अप्लाई करना, वो नहीं कर पाते हैं उसमें. उसके लिए तो पाइथन चाहिए आपको. आ रही बात समझ में? सो ये चीज है. तो परफॉर्मेंस बाइट भी अलग अलग है. तो पाइथन का अच्छा परफॉर्मेंस है, खाली इन्फ्रेंशियल पार्ट को छोड़ के. इन्फ्रेंशियल में भी क्या है, परफॉर्मेंस में क्या है, हमें हर चीज के लिए अलग अलग कमांड करना पड़ता है. आर में क्या होता है, मैंने कोई टी टेस्ट निकाला, तो टी टेस्ट के रिजल्ट में मुझे जितनी भी चीजें चाहिए पैरामीटर रिजल्ट के अंदर, मुझे टी वैल्यू चाहिए, मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, मुझे पी वैल्यू चाहिए, मुझे क्लास इंटरवल चाहिए, मुझे मीन चाहिए, सैंपल, ये सब एक साथ पटक देता आर निकाल के. पाइथन ऐसा नहीं करता है. पाइथन प्रोसेस कर देगा, जो बोलोगे वही देगा आपको. आपने बोला पी वैल्यू तो पी वैल्यू पटकेगा, टी वैल्यू नहीं देगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देगा आपको, मीन नहीं देगा सैंपल का. आ रहा है समझ में? हाँ सर. तो परफॉर्मेंस जो हो गई वो आपको उतनी अच्छी नहीं दे रहा है जितनी अच्छी आर दे रहा है. आर दे, है ना, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में. बाकी मशीन लर्निंग में तो पाइथन का तोड़ नहीं है. ठीक है. हाँ सर. तो
तो यहाँ मैंने इसमें दोनों लैंग्वेज का प्रोज एंड कॉन्स लिखा हुआ है, और ये लिटिल बिट हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, और है ना, एनाकोंडा और जो हम लोग आईडी यूज करेंगे इसमें, कुछ लोग पाइचांग यूज करते हैं, है ना, कुछ लोग जुपिटर यूज करते हैं, तो कौन सा कब यूज करना चाहिए, क्या है, किसकी क्या बेनिफिट है, किसकी क्या डीमेरिट्स हैं, है ना, वो सब चीजें हम लोग पहले हम इस चीज को समझे कि जो हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं हमें इसका पूरा बेस मालूम होना चाहिए, इसकी कितनी आईडीएज हैं, किस आईडीएज का क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं तो कल को आपने पाइथन सीख लिया और आपको आईडीएज के मालूम नहीं, आप किसी और आईडीएज पे काम कर रहे हैं और दूसरी आईडी पे वो बहुत अच्छा हो जाता, होता है ना ऐसा? हाँ होता है भाई कोई से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे अच्छा काम हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, वो चीज जो है नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करती है। तो इसलिए हम हर एक चीज को समझेंगे, पूरे आईडीज को कल अपन डिस्कस करेंगे, रोडियो वगैरह ये सब, है ना, एटम हुआ और जुपिटर नोटबुक हुआ, जुपिटर लैब हुआ, है ना, और फिर अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। ठीक है सर। ये अपने को जो है मोहसिन को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, जुबेर तो खैर थोड़ा सा टेक्निकली है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नॉन टेक्निकल के लिए भी टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा स्लो जरूर होता है पेस पकड़ने में शुरू में, क्या, और जब उप्स वगैरह आपको समझ में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है, यस सर। उसके बाद इजी लगने लगेगा, है ना। अभी भी ऐसा नहीं है, इसमें क्या बेसिकली मेन तो है स्टैटिस्टिक्स, जो दिमाग वाला काम तो वही है मेन, है ना, सिंटैक्स वगैरह कोई बड़ी चीज नहीं है ना, वो तो सीखा जा सकता है, पर मेन होता है कि कंसेप्ट को समझना है ना। तो यस सर। ठीक है, तो अपना कल यही टाइम कंटिन्यू रखना है, यस सर है चलेगा। ना। यस तो सर। मैं अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, जी है सर। ना, तो उसमें आप वो अमाउंट वो कर दीजिएगा, जी सर। और यस सर। मैं इसका स्टडी मटेरियल वगैरह आपके मेल पे मैं सेंड कर दूंगा, है ना। और तुम्हारा भी मुझे वो मोबाइल नंबर शेयर कर लेना, मोहसिन, इनका तो है मेरे पास, जुबेर हाँ का। मैं अभी कर दूं या अभी कर दो, व्हाट्सएप पे पिंग कर दो मुझे, है ना। ठीक है सर। और तो उससे क्या होगा कि जो भी कन्वर्सेशन अपना होता रहेगा, एक अपन अभी जरा और ज्वाइन करेंगे लोग, तो अपन कंबाइंड ग्रुप बना लेंगे, क्या, व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन Yes, sir. मिल जाएगी। वो 2-5 दिन में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उधर से, है ना, उनको प्रीवियस क्लास तो मैं अलग से ले लूंगा उनकी, और जो करंट में अपन उसको जोड़ते जाएंगे, है ना, कोर्स रिपीट नहीं करेंगे। हो गया। तो मीटिंग आईडी ये रहेगी ना सर? हाँ, मीटिंग Same आईडी यही meeting रहेगी, ID. है ना। यदि कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कल, क्योंकि ये मैंने पर्सनल मीटिंग आईडी से दिया है ना। अब वो पर्सनल हम लोग कभी यूज नहीं करते, हो सकता है उसमें नेक्स्ट टाइम करें तो कुछ पासकोड दूसरा बोले, वो तो पासकोड फिर वो लिंक वगैरह जो भी होगा उसका, है ना। चलेगा। यस सर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके सर। कल सेम टाइम। कल सेम टाइम। ओके सर।